Good morning, everybody. Today our topic is CAG, that is Comptroller and Auditor General of India. CAG. So, who is a CAG? Adam, who is a CAG? Government? Which bodies? Yes, तो बहुत सारी इलेक्शन कमीशन को मैनेज करता है. हाँ वो तो ठीक है. He is right. He is managing. CAG manages the financial system of the country. उसको ऑडिट करना. कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई खर्चा कर रहा है, वो खर्चा कोई हद से ज्यादा तो नहीं है, जितना एलोकेट हुआ है उतना हुआ है, या उसमें कोई बचत हो गई, तो वो मतलब ऑडिटिंग, अकाउंट को ऑडिट करना, बैलेंस मेंटेन करना, फंड्स को मेंटेन करना, उसकी चेकिंग करना. दैट इज द वर्क ऑफ CAG. कंट्रोलर एंड ऑडिटर से भैया ना, ऑडिट कौन करता है? ऑडिट फाइनेंस सिस्टम को करना. ठीक है. So remember, this is a constitutional post mentioned in article, very important, article 148. This is the article and it is a constitutional body. Article yaad kar lungi. Is it okay? Write down. CAG is the head of 148. एक बार देखना इसे कौन से उसमें आ रहा है ये. पार्ट 14 में. Just check it once. Confirm कर लो एक बार. CAG, Article 148. यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जैक्टली, सेपरेट आएगा. पार्ट 5 ना. ठीक है. पार्ट 5. And it is a separate constitutional office. Now write down. CAG is the head of Indian Audit and Accounts Department. He is the head of Indian Audit and Accounts Department. And this department was basically created by Britishers in the year 1753. Bracket mein likh lena that this was created by Britishers in year 1753. This Indian Audit and Accounts Department. पहले तो लिखा ना, he is the head of Indian Audit and Accounts Department. Bracket में लिख लो, this was created by Britishers in the year 1753. This particular department. Then write down. CAG is the guardian of financial system of the country. CAG is the guardian of financial system of the country. At both center and state level. At both center and state level. Clear? Now write down appointment. Who appoints CAG? अनीशा, 10 बार प्रेसिडेंट चैप्टर अब तुम लोग रट लो. तुम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हो बिल्कुल. मैंने लिखवाया हुआ ये सब कुछ प्रेसिडेंट चैप्टर में. अब तो रिवाइज कर लो, एटलीस्ट प्रेसिडेंट ही रिवाइज कर लो. ठीक है. सो CAG is appointed by the president with warrant under his hand and sealed. By the president with warrant under his hand and sealed. Who gives the oath?
Oath is also given by the president. हाँ, सिर्फ लिख लो by the president. If you want, you can write it under with warrant under his hand and seal. Simply लिख लो is appointed by the president. इतना ही याद रखो, आप लोग के लिए बहुत है. Oath administered by the president. Tenure. Tenure. Same like अभी तक मैंने जो कराया. यूपीएससी के चेयरमैन 6 years 65 years. इलेक्शन कमीशन CEC 6 years 65 years. CAG also 6 years 65 years, whichever is earlier. लिख लो. Tenure 6 years or 65 years, whichever is earlier. Who can CAG address his resignation letter? Kanishka? President, because he is the person who's appointing. So, as resignation letter can be addressed to the president. Next line लिखे उसमें. Under his hand and seal. हाँ, तभी तो मैंने कहा है ना 6 years or 65 years, whichever is earlier. ठीक है. Now write down he she can be removed by president. Removal की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. He she can be removed by president. When I say warrant under his hand and seal, मतलब यही होता है. ठीक है. On same grounds and in the same manner. On same grounds and in the same manner as judge of the Supreme Court. That is, he, she can be removed by the president. लिखना हो तो लिख लो. He, she can be removed by the president. And because मैं यहाँ पे अब आपको majority लिखवाने वाली हूँ इसलिए. He, she can be removed by president on the basis of resolution passed. He, she can be removed by the president on the basis of resolution passed to that effect. दोनों हाउस पास करेंगे. Yes. दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा. What kind of majority do you think it will be needed? Special majority की जरूरत पड़ेगी. So will be removed by the president on the basis of resolution passed by to that effect by both the houses of parliament. By both, the resolution should be passed by both the houses of parliament with special majority. With special majority. तो देखो क्या क्या आपको अंडरलाइन करना होगा. Same grounds similar to that of judge of the Supreme Court, अंडरलाइन कर लो. Should be passed, the resolution should be passed by both the houses of parliament, अंडरलाइन कर लो. स्पेशल मेजोरिटी अंडरलाइन कर लो. ये एम्फेसिस आपको देना होगा अपने आंसर में अगर आप रिमूवल प्रोसीजर CAG का डिस्कस कर रहे हो तो. ओके. एंड ऑफ कोर्स व्हाट आर द ग्राउंड्स? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. और ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते तो वो तो ग्राउंड बनता ही है. सो ईदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ये ग्राउंड्स हो गए रिमूवल के. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. लिख लिया करिश्का? नेक्स्ट सेम जैसे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस. So how is it guaranteed? अब कौन बताएगा? कनिष्का will answer this question. How is independence of CAG guaranteed? अब तो तुम दोनों को ये रट गया होगा ये आंसर. ये सब में ही कॉमन आएगा. सबसे पहला क्या? सॉरी कनिष्का, बेटा सेम तो है. सेम ऐसे वहां लिख दोगे तो करेक्ट हो जाएगा क्या आंसर? क्या है? यूपीएससी चेयरमैन का क्या था? ऐसे तो ये भी बोल दे सेम एज इलेक्शन कमीशन का CEC, सेम एज जुडिशरी. दिस इज नॉट द आंसर. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. और तो पहले लिख लो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. Also, next line लिखो CAG is not eligible for further office.
CAG is not eligible for further office either under Government of India or any state, either under Government of India or any state, after he/she ceases to hold his or her office. After he/she ceases to hold his or her office. Then, fixed service conditions, salary, allowances, this cannot be changed after his appointment. ये सारी चीजें आ जाती हैं, लिख लो इसको. Fixed service conditions, salary, pension, allowances, this cannot be changed before his retirement. Cannot be changed before. After उसके retirement के आपको कुछ change करने कर सकते हो, पर जब तक वो person appointed है, उसके tenure को आप change नहीं कर सकते हो before his retirement. Okay. Then write down. अब इसके एक्सपेंसेस, इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस कौन से फंड से चार्ज किए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ऑल्सो आर दे वोटेबल और नॉन वोटेबल? आर दे वोटेबल और नॉन वोटेबल? नॉन वोटेबल. राइट इट डाउन. Administration expenses of CAG like salary, allowances, pension is charged on Consolidated Fund of India. Thus, they are not subject to vote of Parliament. Is it okay? Now write down a note. Note लिखो. They are not votable or non-votable in Parliament. They are subject. They cannot be subject to vote by Parliament. Parliament उसमें vote नहीं कर सकती है. ठीक है. Next note लिखो. Salary of CAG is equal to that of Judge of Supreme Court. Salary of CAG is equal to that of Judge of Supreme Court. ठीक है. So we are done with this part. Now comes duties and power of CAG. And this is mentioned under article. Next article after 148 is 149. उसमें है ये duties and power of CAG. अब इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का फंक्शन क्या है. मेन तो क्या है? ऑडिटिंग फंक्शंस. ऑडिट करना है अकाउंट को. तो फर्स्ट फंक्शन ऑडिटिंग फंक्शंस. एंड कैन ही ऑडिट ओनली यूनियन, ओनली एट यूनियन लेवल? ना, स्टेट लेवल पे भी यूटीज विद लेजिस्लेचर, डिफेंस सर्विसेज, PSUs, इवन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी ऑडिटिंग कि इनका बैलेंस शीट कैसा चल रहा है, CAG करेगा. इसी से आपको जो स्कैम्स पता चलते हैं, जब ये कोल स्कैम्स वगैरह हुए थे, ये सारा CAG ने ही पकड़ा था. हाँ, इट डिपेंड्स ना. मोस्टली बहुत सारे अकाउंट्स का ऑडिट होते हैं जब एक पिछली सरकार चली जाती है. गेटिंग दिस पॉइंट? आपके रहते हुए कोई ऑडिटिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऑल्दो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए. मतलब हाँ हाँ नहीं, उस ऑल द ऑफिसेस एक्सपेंसेस तो हाँ. तो ओके ओके ओके, ये मुझे देखना पड़ेगा. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि कौन मैनेज करता है. ठीक है. आई वोंट गिव यू एन इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस. मेरे को एक बार उसको मुझे एक रिमाइंडर डाल दो. ठीक है. ड्यूटीज एंड पावर लिखो. ऑडिटिंग फंक्शंस में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूटीज विद लेजिस्लेचर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूटीज विद लेजिस्लेचर, कॉमा डिफेंस सर्विसेज. तो आप समझ रहे हो कितना मेजर रोल है इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का. डिफेंस सर्विसेज, कॉमा PSUs,
मतलब जहां पे भी सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, चाहे वो पीएसयू, रेलवेज, सरकार का पैसा लगता है उसमें, देन और कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी है जहां पे सरकार का पैसा है, उस सब का बैलेंस शीट कौन चेक करेगा? सीएजी, कॉमा ऑटोनॉमस बॉडीज दैट आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी फंड दे रही है, कौन ऑडिट करेगा? सीएजी, ऑटोनॉमस बॉडीज दैट आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? मेन तो है ऑडिटिंग अकाउंट। सेकेंड फंक्शन, ग्रांट्स इन एड। क्या देना है, कितना देना है, ये सब चीजें या उससे रिलेटेड नॉट देना है, इट्स ऑल अबाउट ऑडिटिंग अगेन। वो तो अलग, ग्रांटिंग की बात नहीं बोली, ग्रांट्स इन एड की ऑडिटिंग। आपने ग्रांट दे दिया, कितना खर्चा किया स्टेट ने, कितना लोकल बॉडी ने खर्चा किया, ऑडिटिंग, कुछ भी ऑडिट हो रहा है, एक तरह से चेक है। मेन मेन सीएजी रहता है। ऑल्दो सी देयर आर, अगर इस ऑफिस की बात करें, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इसमें रेवेन्यू सर्विसेज के पर्सन होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स। हाँ, इंडियन ऑडिट, वही मैं बोली ना, फाइनेंस से रिलेटेड जो पोस्ट होती है ना, वो यहाँ पे मतलब आईआरएस वगैरह, दे आर देयर। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ गुड पोस्ट एक्चुअली यूपीएससी में। ओके, इस इकोनॉमिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो, ग्रांट्स इन एड लिख लिया टू स्टेट एंड लोकल बॉडी। थर्ड, audits accounts of government companies, audits accounts of government companies and accounts of any other body or authority, government companies and accounts of any other body or authority when requested by the president or governor. अगर कोई president governor बोलते नहीं इस कंपनी का आप ऑडिट करो, सीएजी को करना पड़ेगा। Body or authority when requested by president or governor. Another major function is advisory function. Advisory function. Write down advisory function. क्या चीज? सब पता चल जाता है। इस तरह से नहीं, वो पूरा पूरा डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, एक सिंगल पर्सन थोड़ा ना कर रहा है, फुल डिपार्टमेंट, सब चेकिंग होती है। आपको पूरा, यू हैव टू प्रूफ इट, आपको इस तरीके से आपको चीजें, बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है, ठीक है। और इनके ऑफिस, हाँ, आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज, यू डोंट यू थिंक इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन हु इज मेंटेनिंग दैट एंटायर ऑफिस, ऑफिसर्स हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस आर देयर, पब्लिक सर्वेंट्स आर देयर। मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि मोस्टली जो ऑडिटिंग में जो रियल स्कैम्स पता चलते हैं आफ्टर द करंट गवर्नमेंट गोस एंड अनदर गवर्नमेंट स्विचेस ओवर, गेटिंग, बिकॉज इट, इन केस ऐसा कोई स्कैम होता है जो करंट गवर्नमेंट में ही पकड़ा जाए, तो इट बिकम्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गेटिंग दिस पॉइंट? एंड बट करप्शन इज नॉट जस्ट हियर टिल दिस लेवल ना, करप्शन तो अलग अलग रूपों में है, ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है करप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट इट फास्ट। एडवाइजरी फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शन, advises, CAG advises president with regard to, CAG advises president with regard to CAG advises president with regard to prescription of the form in which, prescription of the form in which, prescription of the form in which the accounts of the center shall be kept, the accounts of the center shall be kept। और ये एडवाइजरी फंक्शन जो है ना, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 में मेंशन है ये, advisory function is mentioned in article 150। The center and state shall be kept, the center and state shall be kept। Now write down
Reporting functions. This reporting function of CAG is mentioned under Article 151. Reporting functions. अब जो भी सेंटर खर्चा कर रही है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है that CAG will present to the president and president will present it in the parliament कि आप देखो इस तरीके से खर्चा हुआ, ये बैलेंस आया है, ये डिस्क्रिपेंसी आई है, ये डिफरेंस आया है. Similarly, state level पे that report will be submitted to governor and governor will submit it before the state legislature. ये रिपोर्ट, दिस रिपोर्टिंग फंक्शन इज मेंशन इन आर्टिकल 151. तभी तो पार्लियामेंट में पता चलेगा, तभी तो स्टेट लेजिस्लेचर में पता चलेगा कि क्या चल रहा है. ओके, बट ऑफ कोर्स प्रेजेंट सीएजी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, बट इट इज प्रेजेंटेड by president and here by governor at state level. Write down. CAG submits audit reports related to accounts of center. CAG submits audit reports. This is a very important constitutional office. 148 article भूलना नहीं बिल्कुल भी. 148, 123, 111, 61, 360, 352, 359, 365, 356. कुछ याद आ रहा है कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? किसके? सब चैप्टर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 क्या है? मैं तो अब रैंडम पूछ रही हूँ चीजें. हाँ, 123. मैं बिकॉज दीज आर वेरी पॉपुलर आर्टिकल्स. वाओ, यस. हनीशा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. 61. हनीशा, मतलब तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? ये तो इंपॉर्टेंट है. 10 बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एम्फसाइज किया था आपने. 61. मोबाइल क्या देखना है? 61. प्रियांशी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. देन आर्टिकल 356. हनीशा, तुम लोग सब भूल गए. आदा, मैं आप तो पूछोगे, चलो. हाँ, 356. वेरी वेरी क्विकली. 356 क्या है? 356 तो मत भूलो. अब 3 की कैटेगरी में मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस कराए हैं. इमरजेंसी प्रोविजंस 352, 356, 360 है वो. मत रिवाइज करो. ये आर्टिकल्स भूल रहे हो तुम लोग. पूरी पॉलिटी खत्म होने वाली है, तो रट जाने चाहिए अब तक. चलो, रिपोर्टिंग फंक्शंस. CAG submits audit reports related to accounts of center to president. That CAG submits audit reports related to center, related to accounts of center to the president, that shall then be placed before the houses of parliament. Then be placed before the houses of the parliament. आर्टिकल 151 है ये. ठीक है. Similarly, CAG submits audit reports. Similarly, CAG submits audit reports to governor, who places it before the state legislature. Who places it before the state legislature. ठीक है. Next function, it examines appropriation accounts. Examines appropriation account, comma, whether money has been spent as authorized by the parliament. For example, parliament ने बोला कि इस चीज पे, इस स्कीम पे आप 5 करोड़ खर्चा करो, तो क्या इतना खर्चा हुआ है? इसको भी auditing is done by CAG. Okay, whether money has been spent as authorized by the
पार्लियामेंट। लास्ट लिखे इसमें, लास्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन ओवरऑल होता है पूरा पूरा ही अकाउंट, सभी कुछ सारा मेन जो अकाउंट का सिस्टम है, जितना भी खर्चा हो रहा है, मतलब एनीथिंग दैट इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसकी ऑडिटिंग होगी, एनुअली होती है ये चीजें। मैं व, मैं वही तो बताया ना रीजन तुम्हें, चीजें डिस्क्रिपेंसीज आती हैं बेटा, मैं वही बात बोल रही हूँ आपको। चीजें हु विल एक्सेप्ट कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई स्कैम हुआ, व्हाट डू आई एम जस्ट आस्किंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो नहीं ऐसा नहीं है, वेल नोन वाली बात ही, चीजों को इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ, वही मैं बोली ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, पॉलिटिक्स इज लाइक दैट, यू नो, या अभी इस मेच्योरिटी पे इंडियन डेमोक्रेसी आई नहीं है, तभी तो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स वगैरह में हमारा रैंकिंग बहुत पीछे है। यू नो हाउ लूप होल्स वर्क। यही अगर कोई और गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट हो, इट इज वेरी इजी फॉर सीएजी टू कैच अ स्कैम। वो इतना इजी होता है बिकॉज यहाँ वहां पे अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं ना आपके ऊपर। यहाँ पे तो उसने वो फोन कर दिया, उसने फोन कर दिया, 10 चीजें हैं। वहां कई बार होता है ऊंचे तक पहुंचती ही नहीं है चीजें, वहां पहुंचती ही नहीं है। आप वो उस लेवल पे पहुंचती ही नहीं है, नीचे नीचे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीजें। मतलब यू कैन नॉट से कि करंट द प्राइम मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ इट, नो, थिंग्स डोंट रीच टू दैट लेवल। तो प्राइम मिनिस्टर माइट बी अनअवेयर ऑफ इफ देयर इज एनी सच थिंग हैपनिंग, क्योंकि अगर वहां तक पहुंच जाएंगे तो चीजें तो फिर सॉर्ट करनी ही पड़ेंगी आपको। तो फिर ये एलिगेशन आ जाएगा ना कि प्राइम मिनिस्टर इज, बट when it comes to previous government, people again question directly the prime minister. When particular scam happened in the previous government, everybody was questioning previous prime minister, what was he doing, but the reality is nobody lets that reach the prime minister, अगर आप उस गवर्नमेंट पर्टिकुलर उस समय की बात करो तो। लेकिन ऑफ कोर्स जब नई गवर्नमेंट आएगी वो तो सीधे प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करेगा। फॉर एग्जांपल आज ये गवर्नमेंट ना हो फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, नो मैटर द करंट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो प्राइम मिनिस्टर को ही तो क्वेश्चन करेगी, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को, एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाई दिस स्कैम हैपेंड, बिकॉज अल्टीमेट अथॉरिटी इज प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो ये ट्रांसपेरेंसी है वो लैकिंग है अभी, और वो आ जाएगी तो देश अलग ही जोन में चला जाएगा हमारा। वाया दीज कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हर चीज में नंबर 1 है। व्हाट आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कैन यू नेम देम? ज्योग्राफी, आयरलैंड, सॉरी स्वीडन, स्वीडन जो 3 ऊपर की जो है, डेनमार्क वगैरह सब, वैसे तो मेन तो स्वीडन, हाँ नहीं मेन तो स्वीडन आता है, फिनलैंड एंड नॉट आइलैंड, हाँ सॉरी, टॉप 3 जो भी है ऊपर की, डेनमार्क आ गया, फिनलैंड आ गया एंड स्वीडन आ गया। बट डेनमार्क इज ऑल्सो, हाँ स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क इज ऑल्सो वन अमंग द टॉप रैंकिंग्स, अगर आप डेनमार्क की भी रैंकिंग देखो तो अच्छी आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट लिख लिया, CAG acts as a guide, friend, philosopher of public accounts committee. CAG acts as a guide, friend and philosopher of public accounts committee. Norway, yes. CAG acts as a guide, friend and philosopher of public accounts committee. Now write down significance. Significance. Accounts committee. Underline कर लो. Public accounts committee. Now write down significance. Of course, सबसे बड़ा importance क्या है? He is the guardian of public funds. आपका जो पैसा है उसको चेक कौन कर रहा है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है, दैट इज CAG. He is the guardian of public funds. मेंटेन क्या, मेन है गार्ड करना, कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए उस फंड से, दैट इज ऑल द वर्क ऑफ CAG.
Second, ensures financial accountability of executive and legislature. Ensures financial accountability of executive and legislature. Third, supports parliamentary oversight through Public Accounts Committee. Supports parliamentary oversight through Public Accounts Committee. Ensures financial accountability of, supports parliamentary oversight through Public Accounts Committee. Through Public Accounts Committee. Supports parliamentary oversight through public, मतलब जो भी खर्चा है, जो कमिटी है स्पेसिफिकली पब्लिक अकाउंट्स कमिटी से डील करती है चीजों, ठीक है। मैंने कमिटीज जब पार्लियामेंट में बताया था, बहुत सारी कमिटीज बनती हैं, ठीक है। सिमिलरली बाय सीएजी, जैसे जब कोविड में जो खर्चा हुआ, क्या हुआ, ये सब का बैलेंस भी सीएजी ने देखा था, ठीक है। एंड डिफेंस फंड्स का मैंने सब लिखाया ही हुआ है, राइट। ऑडिट्स ऑल दीज रिपोर्ट्स। इज इट क्लियर? सिग्निफिकेंस समझ में आ गया सीएजी का? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस सबसे बड़ा डिले इन ऑडिटिंग। चैलेंजेस डिले इन ऑडिटिंग। दूसरा आपको मैंने बताया था एडवाइजरी फंक्शन है। व्हेन बिकम थिंग्स बिकम एडवाइजरी, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है। एडवाइजरी नेचर ऑफ सीएजी इज द चैलेंज। थर्ड, वीक वर्किंग ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। वीक वर्किंग ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अच्छा, सीएजी का जो इंस्टीट्यूशनल ऑफिस है उसको भी रिफॉर्म करने की बात बोली गई है कि जो स्पेशली जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जाए, उसके लिए कुछ कमिटीज बनी। व्हाट आर दोस नेम ऑफ दोस कमिटीज? जस्ट फॉर योर मेंस अवेयरनेस, मेंस राइटिंग के लिए आई एम हेल्पिंग। द कमिटीज दैट आर रिलेटेड टू सीएजी रिफॉर्म्स आर, नंबर 1, वीके शुंगलू कमिटी। शुंगलू कमिटी, वीके शुंगलू, शुंगलू कमिटी, ये 2010 में बनी थी। एंड एक आप पढ़ना इसके बारे में, सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशंस। एआरसी इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसकी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी पता चलेगा, ठीक है। Take a 2 minutes break. I'll start with another chapter. So we are done with CAG. Okay, clear है CAG क्या है? एक और टॉपिक करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। स्पेशली आपको नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत है, मैंने वो आपको बस यूटीज में करा दिया ना, बस उतना ही है। मतलब यू डोंट हैव टू स्पेशली रीड एनीथिंग अबाउट इट। ऐसे तो बेटा पॉलिटी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना ही रिवाइज कर लो जितना मैं पूछती हूँ, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उतना भी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। चलो लेट्स सी, होप सो। So if I ask you to explain CAG, will you be able to explain it? और आप लोग खुद से देख लो करंट CAG वगैरह कौन है, just for your own awareness. Shall we start? Okay. So we'll begin with another topic now, and the topic is Attorney General of India. Very important again.
This is another constitutional office. This is also mentioned, like CAG was mentioned in part 5. So this is also mentioned in part 5. An important article related to it is Article 76. Attorney General of India. Important article related to this is Article 76. So basically, देश का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? व्हेन आई से लॉ ऑफिसर, नहीं ये सीएजी की तरह नहीं है, सब रिव्यू करवा लो. यस, he is the he is the main legal advisor of government of India. सरकार का एडवोकेट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. लॉ ऑफिसर की हाईएस्ट लॉ, बिकॉज ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को, जैसे आपके कोई एडवोकेट चाहिए, अभी कई बार सरकार को भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है अपनी, इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अगर कोई एडवोकेसी या कोई भी लीगल सजेशन देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इट विल बी डन बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इसीलिए, और उसको कोई जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, आप पढ़ते हो ना, फॉर एग्जाम्पल हिमांशी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हिमांशी का अपना एडवोकेट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवोकेट कौन होगा वहां पे, या लीगल एडवाइजर कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. गेटिंग दिस पॉइंट? ये होता है अटॉर्नी जनरल. सीएजी अकाउंट से रिलेटेड है, ये लॉ से रिलेटेड पोस्ट है, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मेंशन अंडर आर्टिकल 76. क्लियर? राइट डाउन. He is the highest law officer of the country. He is the highest law officer of the country. Law, highest officer of, आप लिख सकते हो, of government of India, of the country. Yes, he is the highest officer of the country. He acts as chief legal advisor to government of India. He acts as chief legal advisor to government of India. Is it clear? Appointment कौन करेगा इनकी? Same like CAG. Appointment is done by president, and he holds office during the pleasure of the president. And let me tell you, if I talk about tenure, तो आपको पता है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, सीएजी का, इन सबका फिक्स टेन्योर है, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज सच हैज नो फिक्स्ड टेन्योर. ठीक है, नो फिक्स टेन्योर लिख लो वहां पे, अनलाइक जजेस और सीएजी, नो फिक्स टेन्योर. हाँ, अच्छी बात. इस यू नो व्हाट इज द पर्पसली द रीजन फॉर दिस इज दैट मे बी कई बार आपको लॉयर आपको नहीं समझ में आ रहा उनका लीगल एडवाइस, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस नहीं जीत पा रही है, व्हाई वुड यू लाइक दैट पर्सन टू स्टे? एंड मैं एक बात बोल रही हूँ, यू वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विन ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहेगी कि कोई भी केस अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल को नहीं समझ में आ रहा, आप एडवोकेट को कोई फिक्स टेन्योर देते हो अपना केस करने के लिए? आप क्या कहते हो, भैया अगर नहीं हमें समझ में आएगा, आप हमें, अगर हमें लगेगा हम केस हार रहे हैं, हम चेंज कर देंगे, किसी और को फीस देंगे, आपको क्यों कंटिन्यू करें? आप कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा करते हो, नहीं 1 साल के लिए आपको रखेंगे हम. It's just it all depends on what kind of legal advice you're getting from that advocate. If you don't like that advocate, you'll switch. बस getting this point, तो इसीलिए you can say कि शायद इसलिए there is no fixed tenure for Attorney General of India. ठीक है ना. एलिजिबिलिटी लिख लो. What is the eligibility of qualifications? सबसे पहला क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं, इस केस में भी बाहर का कोई लॉयर आप नहीं रख सकते हो. ठीक है, सो सिटीजन ऑफ इंडिया. ऑल्सो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब इतना क्वालिफाइड आप होने चाहिए कि आप
को कल सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया जा सके, वैसा ही पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है. Must be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. Then at least, एक तो ये मेजर क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? 5 years एज अ हाई कोर्ट जज. आप कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट जज होने चाहिए. तभी सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए होगा. गुड एक्सपीरियंस. सो एटलीस्ट 5 years ऑफ हाई कोर्ट जज और 10 years एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट. 10 years एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट. Then next you get as or a distinguished jurist as per president's opinion. Third, a distinguished jurist. क्या हो गया आदम? मोबाइल कहाँ रखा है तुम्हारा? साइड कर दो उसको. Or a distinguished jurist as per president's opinion. President's opinion. हाँ, एज तो रहती है बेटा. एक्सपीरियंस आप जो जो जज बन रहा है, जज आसानी से वैसे भी नहीं बनता है व्यक्ति. ठीक है. और एडवोकेसी भी 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. 10 साल तो आप ऐसे ही मान लो. ठीक है. आप उसमें देखो होगी बेटा, अगर नॉर्मली जज के क्वालिफिकेशन के हिसाब से चीजें आप मान लो इसमें. ठीक है. इस पोस्ट पे नहीं, बट एज सुप्रीम कोर्ट जज तो आपका टेन्योर तब भी फिक्स्ड है ना. टाइम लगता है. नाउ राइट डाउन ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्विकली. ड्यूटीज एंड फंक्शंस. हम उसको बात करेंगे, बट दैट इज सेम. मैं इसीलिए बहुत सारी चीजें जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ. ठीक है. नाउ राइट डाउन अटॉर्नी जनरल advises the government on legal matters. Duties and functions. Attorney General advises the government of India on legal matters. Second, represents government in Supreme Court of India. Represents government in Supreme Court of India and high courts in important cases. And high courts in important cases. तो मैंने बताया जैसे so versus Union of India होता है. So and so versus Union of India. तो वहां पे जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल. ठीक है. और आपकी तरफ से या जो भी पर्सन कंसर्न पर्सन होगा वो उसका एडवोकेट होगा. देन थर्ड, परफॉर्म्स लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट. परफॉर्म्स लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट. देन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में द रिप्रेजेंटेटिव इज it is the representation is done by Attorney General of India. In constitutional cases, government of India की तरफ से जो representative होगा that will be Attorney General. क्या? हाँ, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर केस है तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अटॉर्नी जनरल होगा. क्या चीज? एनी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस है, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव अटॉर्नी जनरल, उनके उनको रिप्रेजेंटेशन मतलब नहीं हमने नहीं किया या वॉट एवर दैट रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. कोई तो उनकी तरफ से बोलेगा ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो आएंगे नहीं बोलने के लिए. तो इट इज ऑलवेज उनका जो लीगल एडवाइजर है वो आप बात करेंगे. देन राइट डाउन राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या है. राइट्स एंड प्रिविलेजेस. राइट्स एंड प्रिविलेजेस. Write down. He has right of audience in all courts in India. He has right of audience in all courts in India. He has right of audience. Rights and privileges. He has right of audience in all courts in India.
He can participate in proceedings of parliament, that is both Lok Sabha and Rajya Sabha. He can participate in the proceedings of parliament, that is both Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament and parliamentary committees. Then he cannot vote in parliament. लेकिन attorney general का कोई vote नहीं होगा parliament में. Okay, he can attend अगर कोई proceeding होता है, कुछ होता है, but he cannot vote in parliament. लिख लो, cannot vote in parliament. हाँ? क्या चीज? Normally proceeding बस देखते हैं so that कई बार decision लेने में आसानी होती है. आप जब when you are aware of things, you can लीगल एडवाइस दे सकते हो आप. मैं बोलती हूँ लीगल एडवाइस आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हो. ऑफ कोर्स लीगल मैटर में ही तो मैटर है ना, बाकी चीजों के लिए बाकी लोग हैं ना. आपका जो रोल है आप वही अदा करोगे ना, दूसरा रोल थोड़ा अदा करोगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस ऑफिस? पहली बात, सबसे बड़ी चीज, मेजर रेस्ट्रिक्शन, यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप चीजें एडवाइस नहीं करोगे. हाँ, वो अलग चीज है. किसको करोगे? वो भी किसको करोगे? ट्राई करो. हाँ, वो तो जज होगा, जो एडवोकेसी कर रहे होंगे तो रख सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स. द पर्सन शुड बी एन एडवोकेट. एडवाइस और होल्ड ऑफ, रिटायर हो गए तो कहाँ से कर लोगे? नहीं, लॉयर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे देमसेल्व्स टेक रिटायरमेंट. जैसे उसमें कौन सा केस था? इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारे पास ऑल दीज एक्सपीरियंस ऑन द चार्ज आल्सो दैट मच. तो वैसे ही लोग तो जो सबसे ज्यादा खुराफाती फंसे होते हैं वो ऐसे ही लोगों को फिर हायर करते हैं, बिकॉज दे आल्सो आर अवेयर ऑफ द लीगल लूपहोल्स, कैसे घुमाया जा सकता है. अच्छा चलो, फास्ट. एडवाइस और ब्रीफ, यू कैन नॉट ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डिफेंड एक्यूज पर्सन्स इन क्रिमिनल केसेस विदाउट परमिशन. अगला रेस्ट्रिक्शन, यू, मैंने लिखा है ना, यू कैन नॉट होल्ड और एडवाइज एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लिख लिया? नेक्स्ट, defend accused persons in criminal cases without permission. Defend accused persons in criminal cases without permission. ठीक है. परमिशन, कोई क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो until unless you take permission of government of India. ठीक है. Accept directorship in companies without government approval. Accept directorship in companies without government approval. Government approval. अब हम बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की. रेम्यूनरेशन एज सच जो है कोई फिक्स नहीं है. ठीक है. एंड फीस या कुछ भी रहता है वो पर केस मिलता है, एंड दैट इज अगेन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिक्स एज सच कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ दिया नहीं रखा है. ठीक है. सो देयर इज नो फिक्स रेम्यूनरेशन. पर केस चार्ज दिया जाता है और वो डिसाइड करते हैं. नहीं, बेनिफिट ऑफ कोर्स, कोई उस लेवल का जज है जो सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, तो उसकी सैलरी हाई ही होगी वैसे आपके हिसाब से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन करेगा. अच्छा से इट डिपेंड्स. भाई मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड. सी, सरकारी काम में वैसे ही बहुत पैसे नहीं मिलते हैं. आपको एक प्राइवेट, आप प्राइवेट नहीं कर रहे हो, मैं ये बता रही हूँ. नहीं, अगर आप ऐसे एडवोकेसी कर देखो तो कई जो महंगे महंगे लॉयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बहुत हाई लेवल का ही होगा. गेटिंग दिस पॉइंट? तो उस हिसाब से पैसा कम है, बट एज सच इट इज नॉट फिक्स. तभी तो बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तभी तो बोलते नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब. पीपल आर लाइक दैट. ओनली थिंग बेनिफिट इज यू गेट पावर एंड यू गेट एक्सपोजर, यू गेट एक्सपीरियंस. ठीक है, वो चीजें हैं.
अगर पैसा नहीं है तो ऑल्दो नाउ ग्रेजुअली इवन गवर्नमेंट हैज गिवन, चीजें इंक्रीज हुई है पहले से, जो अपनी रिकमेंडेशंस आती हैं पे कमीशन की, तो नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड नाउ, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। अब आपके मतलब मेजर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज करा दिए हैं, टुमारो विल कंटिन्यू विद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।